সুনিতা নিউজ মোমেন্ট বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আসুন এবারে দেখে নেওয়া যাক আজকের বিশেষ খবর বিস্তারিতভাবে। সিনিয়র রিপোর্টার বিকাশ প্রসাদ অনুসারে পারবেলিয়া সমু কলিয়ারি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবারই সোদপুর এরিয়ার ভাঙাচোরে প্রস্তাবিত কলিয়ারি খোলার দাবি নিয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে পারবেলিয়া কলিয়ারি অভিকর্তা অফিসে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর সাথে সাথে পারবেলিয়া কলিয়ারি অভিকর্তাকে একটি স্মারকলিপিও জমা করা হয়। পক্ষ থেকে পারবেলিয়ার এজেন্টের কাছে ডেপুটেশন দিলেন, ভেতরে কি গল্প হলো, কি বললেন উনি? আমরা ওনাকে ডেপুটেশন যে পত্র ছিল সে দেওয়া হলো। তারপর উনি বলেন ভাঙাজোড়ের উপরে বলেন কি আমরা ভাঙাজোড়কে স্টার্ট করার জন্য অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। আমাদের যে কুণ্ডু সাহেব ছিলেন উনি অনেক খাটলেন, খাটার পরে रामकरेश चौबे, WBC MU के दामोदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब हो कि वर्ष 1997 में भांगाजोड़ में कोलियरी खोलने के लिए तत्कालीन कोयला मंत्री कांति सिंह द्वारा उद्घाटन करने के लिए 3 तिथियां रखी गई, लेकिन उनके किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द कर दिए जाने से यह मामला अब तक মানে ওই যে জায়গার গ্যাস পরিযোজনা হওয়ার জন্য কোনো কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছে, কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছে যদি ওইটা বলো আগে গ্যাস বার করে তারপরে মাইন হলো। কিন্তু ওনারা বলেন ঠিক আছে আমরা আপনারা যে আজকে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে সেই ডেমনস্ট্রেশনটাকে হেডকোয়ার্টার এরিয়া পাঠাবো জিএম সাহেবের কাছে, ওইখানে যা আছে যদি হেডকোয়ার্টার পাঠাবে। এটা খুব ভালো প্রপোজাল আছে, এটা করলে এরিয়া যে আমাদের ক্ষেত্র আছে সেটা ভালো হবে। আর অন্য অন্য কলেরি নিয়ে যে বললাম হ্যাঁ, আর যে কলেরি আছে যেমন পুয়াপুর আছে, শালতোড় আছে, রানীপুর আছে, ভামুরিয়া আছে, ইমিডিয়েট বলেছেন যে আমাদের দুটো ওসিপি করবেন, একটা আছে পারবেলিয়া ওসিপি, একটা দুবেশ্বরী ওসিপি। একটা এই ওসিপি নিয়ে বললো কি আমরা এটা যদি স্টার্ট করি মানে সহযোগ নিয়ে পড়ে ওটা খুব জলদি হবে। আর সেটা যদি ওপেন হচ্ছে তো পারবেলিয়া আর দুবেশ্বরী দুটাই জন্য ভালো হবে, এইখানকার ওয়ার্কার জন্য ভালো হবে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে এজেন্টের কাছে আপনারা কিছু ডেপুটেশনের জন্য এসেছেন, কি বলবেন? আমরা এজেন্টের কাছে ডেপুটেশন এসেছি যে না আমাদের এলাকাতে যা দুটি কলিয়ার আছে তার মধ্যে পারবেলিয়া বন্ধের মুখে, কিন্তু আমাদের এখানে কয়লা মজুদ ভাণ্ডার আছে, মানে অপর্যাপ্ত মজুদ ভাণ্ডার আছে। যেমন ডাঙ্গাজোর কলিয়ারে আপনারা জানেন যে 1996 সালে উদ্ঘাটন হওয়ার কথা ছিল এবং ওখানে মন্ত্রী তিনবার ক্যান্সেল করেছে। এখন আমরা যদি পারবেলিয়াকে যদি আমরা বিকল্প হিসাবে ডাঙ্গাজোরকে চালু করতে না পারি তাহলে এখানে আমাদের কলিয়ারি থাকবে না, দুবেশ্বরী পরবর্তীকালে বন্ধ হবে। কারণ ভামুরিয়া কলিয়ারি এবং পারবেলিয়া ডাঙ্গাজোর কলিয়ারি যে মজুদ ভাণ্ডার তা যদি 800 টন করে প্রোডাকশন হয় তাহলে 20 বছর চলতে পারে। আমাদের মূল দাবি হলো ডাঙ্গাজোর কলিয়ারি চালু করুন এবং সাথে সাথে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া 8টি বন্ধ কলিয়ারি চালু করার জন্য ওরা সিএমপিটাকে বলেছে যে আপনারা দেখুন। আমরা বলেছি যে আমাদের এলাকাতেও যে কলিয়ারিগুলো বন্ধ হয়েছে, পারবেলিয়া পিট উন্নত মানের কয়লা, ভামুরিয়া উন্নত মানের কয়লা, টুপি আপনারা জানেন যে বন্ধ হয়ে চালু হয়েছিল, সেটাও উন্নত মানের কয়লা, থিন সিম, কিন্তু আজকাল বর্তমান প্রযুক্তি থিন সিমের কয়লা তোলা কোনো অসুবিধা নেই। পুয়াপুর কলিয়ারি আপনারা জানেন যে মাননীয় কয়লা মন্ত্রী উদ্ঘাটন করেও ওটাকে চালু করা যায় না, কি বলছে না স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট ঠিকই তো প্রজেক্টটা তৈরি হয়েছে। আর আজকাল বর্তমান টেকনোলজিতে স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট কোনো ফ্যাক্টর নয়, অর্থাৎ এগুলো কমার্শিয়াল মাইনিং করার জন্য ধান্দা। আমরা কমার্শিয়াল মাইনিং হতে দেবো না, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এখানকার বেকারের স্বার্থে, এখানকার শ্রমিকের স্বার্থে। এবং যে সব আইনগুলো সরকার বদল করছে এবং জানেন যে গতকাল যে বিল পাস হয়েছে কদিন আগে, 50 বছর সার্ভিস উদ্ঘাটন অতিক্রম করলে কোনো শ্রমিক বা অফিসার যদি মনে করে যে কাজে কর্মক্ষমতা নাই তাকে ছাঁটাই করে দেবো। এমনি ঘটনার এনটিপিসিতে অলরেডি লাগু হয়ে গেছে এবং আমাদের কলিয়ারিতেও চালু লাগু হবে। এই সকল শ্রমিক বিরোধী আইনগুলোর লড়াইও আমাদের সামনে আছে। এরপর আমরা এজেন্ট জিএমের কাছে যাব, দরকার হলে আমরা সিএমডির কাছে যাব। আমরা এই লড়াই জারি রাখবো যতদিন আমাদের লক্ষ্য আমরা পূরণ না করতে পারছি। আপনার নাম? আমার নাম কানন নেওগি। কি পদে আছেন? আমি सीएमएसआई सेंट्रल कमेटी सदस्य। हमारे बीच इंटक के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी वाईपी त्रिपाठी साहब हैं। आप ये बताएं कि आज का जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया इसका मुख्य मुद्दा क्या था? आज
ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से परबेलिया कॉलोनी के एजेंट के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन रखा गया था और हम लोगों के प्रतिनिधि साथी एजेंट से वार्ता कर रहे हैं। वार्ता का विषय कोयला उद्योग के सामने जो तमाम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जो उद्योग के ऊपर राष्ट्रीय संकट दिखाई दे रहा है, प्रबंधन की जो उदासीनता है और सबसे बुरी स्थिति सरकार की जो नीति है, इन सब के खिलाफ हमारे सभी साथी आए थे। आप सभी साथियों को पता है कि पिछले वर्ष डीजीएमएस के वायलेशन के नाम पर परबेलिया कॉलोनी को 2 महीना से ऊपर बंद रखा गया था और ये उद्योग कोयला परबेलिया कॉलोनी और चल पाएगा कि नहीं, ये संकट का विषय था। सभी साथियों ने मिलजुल कर डीजीएमएस का वायलेशन जिन पॉइंट को लेकर था उसको किसी तरह से दूर कराया, काफ़ी मेहनत किया और परबेलिया कॉलोनी जो बंद हो चुका था उसको पुनः चालू करवाया। तो यहाँ के साथियों को लड़कर कुछ हासिल करने का अनुभव पहले से है और उसी के तहत प्रबंधन की उदासीनता को देखते हुए जैक ने निर्णय किया कि हमारे अगल बगल जैसे ढांगाजोर प्रोजेक्ट है और ढांगाजोर प्रोजेक्ट का ओपनिंग के लिए प्रबंधन कई बार तैयारी किया, लड्डू मिठाई बहुत कुछ बांटा और आज तक पावापुर प्रोजेक्ट का कोई प्रोग्रेस कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ कदम मैनेजमेंट पीछे उठा के बैठा के बैठी हुई है। उसके बगल में मधकुंडा जाते समय स्टेशन के पास CMPDI का सर्वे हुआ है और वहाँ बहुत कोयले का रिजर्व वहाँ मिला है और वहाँ आज नहीं कल खदान होगी, लेकिन कोल इंडिया के तरफ से ECL का जो मैनेजमेंट है कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो उसको ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे जैक के साथी आज आए हुए हैं, एजेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए ढांगाजोड़ को चालू करने के लिए। बगल में पुआपुर प्रोजेक्ट था, पुआपुर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ज़मीन लिया है, वहाँ नौकरी भी दिया है 5 आदमी को और वहाँ कोयला खदान खोलने की बात थी, लेकिन 15 बरस से ऊपर बीत गया, 20 बरस, लेकिन कोयला खदान वहाँ खोला ही नहीं। तो जब यहाँ खदानें बंद होने की स्थिति में आएंगी और अगल बगल जब जहाँ कोयला है, सातुड़ी में काफ़ी कोयला रिजर्व है, वहाँ पर भी CMPDL के सर्वे में ज़मीन के नीचे काफ़ी कोयला का पता चला है। तो क्या ये प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए कोयला रखा हुआ है? सरकार की अपनी कंपनी है कोल इंडिया जो देश का 80% कोयले का उत्पादन करता है। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास दक्ष मैन पावर है, हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग को काम का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यही सवाल उठाने के लिए जैक के साथी आज यहाँ आए हैं और ये आंदोलन और बड़ा होगा। हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कार्यक्रम चल रहा है और कोल इंडिया की नीतियों का और सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध सभी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन। इसमें सुना जा रहा है कि ढांगाजोर में मीथेन गैस निकालने के लिए ज़मीन को किसी और कंपनी को दे दिया गया है। हाँ, ये तो धंधाबाजी है, ये तो धंधाबाजी मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट तो बिना कुछ किए हमेशा कमीशन कहाँ मिलेगा, कहाँ धंधा होगा, इसी चक्कर में तो है मैनेजमेंट, बिना कुछ किए ही है। और ये मैनेजमेंट अकेले नहीं कर रहा है, इसमें सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो नुमाइंदा है, जो मंत्री हैं, उन लोगों की नीतियाँ ऐसी हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देना है और निजीकरण के विरोध में ये जैक आया है। जैक बोलता है कि हम सरकारी संस्थान है, हमको मौका दीजिए, हमको काम करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये आप कहना सही है। आपको क्या लगता है कि वहाँ खदान होना चाहिए? मीथेन गैस निकालने से सरकार को और देश को फायदा होगा? मीथेन गैस हम लोग भी निकाल सकते हैं। मीथेन गैस के लिए जो जिस तरह से उन लोगों ने एक्सपर्ट लाया है, हम भी ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास भी बुद्धि है। ये सड़ा हुआ मैनेजमेंट हमसे पैसा ले रहा है, लाखों लाख रुपया पेमेंट ले रहा है। गलत लोग GM डायरेक्टर और क्या क्या बन के बैठे हैं। ऐसे नालायक लोगों को पेमेंट हम लोग क्यों देंगे? ये पैसा किसका है? हम लोगों का है, देश के लोगों का है। देश के लोग इससे अच्छा प्रबंधन ला सकते हैं। हम लोग अच्छा इससे एक्सपर्ट लाएंगे, हम लोग काम करवाएंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग को मौका सिर्फ नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि जो सरकार की नीति है निजीकरण का, निजीकरण में हमको भी बोलने का मौका दीजिए, हमको भी टेंडर में हमको भी भाग लेने दीजिए। हमको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो ये सब नीतियों के वजह से हम लोग प्रभावित होने वाले हैं। पावापुर की क्या समस्या है? पावापुर का कोई समस्या ही नहीं है। पावापुर में हम ऑलरेडी हमारा जमीन है, हम वहाँ 5 नौकरी दे के रखे हुए हैं। वहाँ पर हमारा बहुत कुछ काम किया हुआ है, हम इंक्लाइन वहाँ काटे हुए हैं। अगर वहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन हो सकता है। आपकी बातचीत में पावापुर प्रबंधन के लिए ECL प्रबंधन ने क्या बताया? ECL प्रबंधन तो हमेशा फाइल खोल के अपना काम के लिए उद्घाटन करते समय जब कोयला मंत्री को लाकर पावापुर का उद्घाटन किया तो प्रबंधन को तो मालूम था कि यहाँ पर कितना कोयला है और कितना वर्ष चल सकता है।
कोयला मंत्री के स्तर पर जब भारत सरकार के प्रतिनिधि का वहां पर उसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन के बाद क्या कारण है ये तो प्रबंधन बताएगी। हम लोग तो बता रहे हैं कि वहाँ कोयला है, कोयला उसके नीचे है और हम लोग कोयला चल। कब हुआ था वहाँ पावापुर उद्घाटन? पावापुर उद्घाटन तो साल हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम 15 साल से ऊपर का बात है। कितना कोयला रिजर्व है? बहुत कोयला है वहाँ। 18 साल के लिए कोयलरी चलाने का अनुमान था और दुबेसरी को 15 साल का अनुमान दिया था लोग। आज दुबेसरी 30 साल से ऊपर चल गया। सरकारी अनुमान दुबेसरी को चलाने का 15 साल का था और सरकारी अनुमान पावापुर को चलाने का 18 वर्ष का था। आज दुबेसरी 30 वर्ष हो गया, अभी भी दुबेसरी चल रहा है। तो इसलिए सरकारी अनुमान के बारे में भी अगर आप बात करेंगे तो 18 वर्ष का इन लोग का अनुमान था कोयला का। धन्यवाद। আসানসোল নগর নিগমের মেয়র এবং ওনার বউ সুস্থ হয়ে ঘর ফিরে আসার খুশিতে 105 নম্বর ওয়ার্ডের টিশারগাড়ে ঠাকুর বাড়িতে মঙ্গলবারই তৃণমূলের পক্ষে থেকে হবন যজ্ঞ করা হয় এবং বাবুবাসায় স্থিত কালী মন্দিরে পূজা অর্চনাও করা হয়। মেয়র শ্রী জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি নিজেই আসানসোলের বাসীদেরকে ধন্যবাদ দিলেন। আসুন শুনবো ওনার আওয়াজে। এই শিল্পাঞ্চলের জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই যে তারা এই কোভিড-19-এর দ্বারা যে আমি এবং আমার ফ্যামিলি এফেক্টেড হয়েছিলাম, সে সময় তারা যেভাবে পাশে রয়েছেন, তারা আশীর্বাদ করেছেন, তারা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন, সঠিক নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে আজ সুস্থ হয়ে আমি বাড়ি ফিরেছি। এবং যতদিন আমরা দুজনেই হসপিটালে ভর্তি ছিলাম, ততদিন এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ যেভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, তারই ফল হিসাবে আজ আমরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষকে সারা জীবন আমি ভুলবো না। এই বিপদের সময় তারা যেভাবে মানসিক জোর দিয়েছেন, আমাকে মানসিকভাবে আমার পাশে থেকেছে এবং আমাদের সুস্থতার কামনা করেছেন, তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ি, হয়তো 5-6 দিন মধ্যেই আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ইউজুয়াল কাজে ফিরতে পারি। ধন্যবাদ। অন্ডাল থেকে রামানন্দ পাসওয়ান উইথ ক্যামেরাম্যান মান্থন পাসওয়ান অনুসারে বিজলি সাপ্লাইয়ের মাং নিয়ে পান্ডেশ্বর এরিয়ার ডালুরবাঁধ স্টেডিয়ামের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা অনেকক্ষণ ধরে ডালুরবাঁধের কয়লা ট্রান্সপোর্টিংকে বন্ধ রেখে आंदोलन करें। डालूबांध नया सेंटर में 8 रोज से लाइन नहीं है। एरिया इंजीनियर जीना साहब के पास पूरा पब्लिक गया, बोल रहे हैं आज लाइन देंगे, कल लाइन देंगे, अभी तक से लाइन नहीं आया है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आने के लिए बात था, खूटा दे दिया गया है। मैनेजर के पास जाते हैं तो बोलते हैं एरिया में बात कीजिए। PMIC का हम लोग खबर दिए हैं, बड़ा बाबू की भी बोले हैं, हम लोग ब्लॉक लेवल में भी जलाए हैं। अभी तक पूरा पब्लिक परेशान है, कितना बच्चा का तबीयत खराब है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द लाइन का व्यवस्था किया जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। সহযোগী মনোজ শর্মা অনুসারে বারাবণী ব্লকের পুচরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো কয়েকজন দুষ্কৃতী কারণ হচ্ছে কয়েকদিন আগে বারাবণী ব্লক মেশিন আর যুব প্রেসিডেন্টকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল এবং এতে গ্রামের প্রচুর মানুষ এখানে উপস্থিত হয়ে ওই দুজনকে সম্বর্ধনা প্রদান করে এবং তারাই ভিত্তিতে অপোজিশন গ্রুপ মঙ্গলবারে তারা এসে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে এবং জানে মারার ধমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনা পরে বারাবণী থানাকে খবর দেয়। পরে বারাবণী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং যাতে আরও অন্য কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়। যে পার্টি অফিসে ঘটনা ঘটেছে মদনপুর বান্দা পুকুর পার্টি অফিস। বারাবণী থেকে মানস শর্মা রিপোর্ট। কি হয়েছিল কালকে ঘটনা? কালকের ঘটনা হয়েছিল মানে কদিন আগে আমাদের এখানে একটা ব্লক প্রেসিডেন্টের সম্বর্ধনার প্রোগ্রাম রেখেছিলাম আমরা। তো আমরা সেদিন প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা লোককে জমায়েত করেছিলাম।
প্রচুর লোক করেছিলাম। সেদিন আমাদের এইখানে অনেক লোক হয়েছিল, তো ওরা সেটা ওরা বলতে আমাদের গ্রামেরই ওরা কি করে? উপরে টিএমসি করে আর ভিতরে অন্য পার্টি করে, ঠিক আছে, তারাই। তারপরে তারা কি করেছে কালকে আমাকে রাতের বেলায় আমি বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিলাম, আমার শালার বিয়ে ছিল, তো আমাকে রাস্তার মধ্যে আটকে বিস্কুট কারখানার কাছে, তো বিস্কুট কারখানা আছে ওইখানে আটকে 4 জন মিলে মারধর করে, ঠিক আছে। আজকে সকালে যখন থানায় কমপ্লেন করতে যাই, তখন কমপ্লেন করে যখন আসি, তখন এসে দেখছি আবার পার্টি অফিসে এসে পরে আমাদের পার্টি অফিসে ভাঙচুর করেছে। কিসের পার্টি অফিস? কোন পার্টি অফিস? টিএমসি, তৃণমূল পার্টি অফিস, তৃণমূল পার্টি অফিসে। এটা কারা ভাঙচুর করেছে? গ্রামের দুষ্কৃতীরা। তোমার নামটা কি? আমার নাম শেখ গাফার হোসেন। আজকে কি হয়েছিল? আজকে আমরা একটা কালকে রাত্রে একটা ঝামেলা করেছিল ওরা, আমাদের একটা ছেলের সাথে। ওই ছেলেটা ওর শালার বিয়ে ছিল, বিয়ে বাড়িতে অ্যাটেন্ড করার জন্য যাচ্ছিল, রাস্তায় ধরে মারধর করেছে। মারধর করার ফলে সে সকালে কমপ্লেন জানাতে গিয়েছিল থানাকে, কমপ্লেন জানাই এসে পরে আমার অফিসে সবাই বসে আছি। তার মধ্যে 8-10 জন দুষ্কৃতী এসে পরে আমাদের এইখানে চেয়ারগুলো ভাঙচুর হাবিজাবি করতে শুরু করলো। আমরা দাদাদেরকে ফোন করেছি, উপরে হাই কমান্ডকে ফোন করেছি, আমাদেরকে বললো যে কোনো কিছু ঝামেলা যাতে না হয়, তোমরা যেমন আছে চুপচাপ বসে থাকো, ব্যাপারটা আমরা সব দেখছি। এমনকি আমাদেরকে 5টার সময় দিয়েছে যে আমরা 5টার সময় আমরা সবকে ডাকছি, তারপরে ব্যবস্থা একটা নিচ্ছি কিছু। কতগুলো দুষ্কৃতী ছিল? মোটামুটি 8-10 জন। তারা কি বাইরের না এখানকার? না, গ্রামেরই। কারণ কেন? কি কারণে? কারণ হচ্ছে আমার একটা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম 2-1 দিন আগে। 2-1 দিন আগে একটা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। আমাদের ব্লক সভাপতি 3বারের ব্লক সভাপতি ছিল, একটা নতুন যুবর প্রেসিডেন্ট হয়েছে, তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। আমার এখানে প্রচুর লোক জমায়েত করেছিলাম। প্রচুর লোক জমায়েত করার ফলে সব টিএমসির লোক জমায়েত করার ফলে কিছু লোকের একটা আতঙ্ক জেগে যায় যে তাহলে কি টিএমসি সম্পূর্ণ ভোটটা নিয়ে নেবে। তো টিএমসি সম্পূর্ণ ভোটটা যাতে না পায় সেই জন্য এই ধরনের একটা কাণ্ড কারখানা মানে ঘটাতে চাইছে আর কি। নামটা কি? আমার নাম যাদব সাজি। কি পোস্টে? আমি মদনপুরে টিএমসির গৌতম পলের অনুসারে 43 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশা শর্মা বিভিন্ন সমস্যাকে নিয়ে এডিএম অফিসে এডিএমকে একটি স্মারকলিপি দেন। आज वार्ड नंबर 43 के विभिन्न मुद्दे पर आज एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आई है, जिसमें लाइट की समस्या है, जिसमें पानी की भी समस्या है और नाली जो टूटा है उसकी भी समस्या है, पेंशन का भी मुद्दा है और विभिन्न मुद्दे हैं। क्योंकि आज 5 साल हो गए हैं, हम लोग कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो आज तक वार्ड में 50% जो लाइट मिला है मुझे हर वार्ड की भी समस्या है कि सभी वार्डों में बोला गया था कि और भी सेकंड फेज में लाइट मिलेंगे, लेकिन आज तक लाइट मिला नहीं। 50% तो लाइट अभी नहीं मिला है। आधा वार्ड लगा है एलईडी और आधा वार्ड नहीं लगा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अंधेरा भी है विभिन्न जगहों पर, इसलिए मैं ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेयर साहब को भी मैं ज्ञापन दूंगी इसके माध्यम से। तो और भी पेंशन 5 सालों में 50 ही पेंशन हुए हैं अभी तक और बहुत सारे पेंडिंग, तो वो कब होगा। और दूसरी बात है कि मुझे जो फंड मिला था वार्ड नंबर 43 को सिविल का मिला था, जिसमें रोड बने, लेकिन अभी भी नालियाँ बहुत ही खराब स्थिति में है। नालियाँ भी को भी बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए भी मुझे फंड चाहिए ताकि हम बना सकें उस वार्ड का। और तीसरी बात है लाइट, पानी की समस्या। पानी बहुत ही लेयर कम रहने की वजह से पानी कम खुलता है, चूँकि एक ही रिजर्वर के कारण से। तो अगर रिजर्वर यहाँ अगर चालू हो जाते हैं तो पानी की समस्या भी कम होगी। और बहुत सारे जो पानी कम आ रहा है, पानी नहीं खोलने की वजह से आ रहा है, तो मैं जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करूँगी सर को कि जल्दी से रिजर्वर का जल्दी से यहाँ चालू हो ताकि जनता को पानी भी मिले। तो मेरे ख्याल से जैसे आसनसोल कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे विकास किए, ठीक है, लेकिन बुनियादी सुविधा जब तक हमारे वार्ड के जनता को नहीं मिलती है, आसनसोल की जनता को नहीं मिलती है, तब तक मैं समझती हूँ कि विकास अधूरा है। इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ
माननीय मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी मेयर से, चेयरमैन से कि जल्द से जल्द इस मुद्दा को देखें। जो बुनियादी सुविधा है यहाँ की जनता को, उसकी सुख सुविधा पर प्लीज ध्यान दें। पेंशन का मुद्दा, पानी की और घर भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें घर जो बनना था, जिस रफ्तार गति से बननी थी, वो नहीं बन पाया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द आप इस पर ध्यान दें और लोगों का जो घर पास हुआ है उसको भी बनाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ইউনিটি ক্লাব আর টিপু ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে আইজি কলোনি হিরো কাপ ফুটবল ট্রেনিং টুর্নামেন্ট 2020 আয়োজিত করা হয়। চিফ গেস্ট উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, স্পেশাল গেস্ট উপস্থিত ছিলেন বুম্বা মুখার্জি, অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস চেয়ারম্যান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুভাশিস মুখার্জি, বিশ্বনাথ মণ্ডল, আক্তার হুসেন ইত্যাদি। উইনার টিম হয় কেন্দুয়া বয়েজ কুলটি আর রানার টিম হয় প্রকাশ ক্লাব কুলটি। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তবসুম আরাকে 62 নম্বর ওয়ার্ড আপার কুলটি গোয়ালে সম্মানিত করা হয়। तार बेटी से भी गलत हो सकेगा, हम तार बहू वाली, लेकिन बेटी मान के चलिया, बहू के बेटी बनवा तो हम भी आपका झूठा वादा। लेकिन हम लोग के नेत्री बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ जोड़ने के कोशिश की है, सिर्फ हम लोगों के साथ जुड़ी रहती है, सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए कि बंगाल में लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज पूरे बंगाल में रूपाश्री नाम के, कन्याश्री नाम के, शिक्षाश्री नाम की सारा योजना हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने दी। और हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम के लिस्ट में बैठे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रहुआ इतना लोग नहीं खड़ा बटे पता कोई भी एक बेटी के अकाउंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 1 रुपया भी गए कोई भी आदमी बोल दे। लेकिन शिक्षाश्री, कन्याश्री, रूपाश्री बंगाल के घर में हर एक बेटी के अकाउंट में पूछा, हर एक बेटी के अकाउंट में हर एक योजना के उन लोग को फायदा बा। यही हम आप लोग से बस यही कहना चाहते बनी कि आए वाला दिन हम लोग के विधानसभा इलेक्शन के दिन बाटे, कोई भी टिकट मिले, विमान आचार्य जी हम लोग के ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनका पूरा साथ देने के बाद के, क्योंकि आए वाला विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के नेता घर घर जाए उन लोग के एगो लिस्ट लेके बोली कि हम ही काम करने वाली ही काम कर। कान लोग से एक ही सवाल बातें, सिर्फ एक सवाल करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तार लोग कितना पैसा देने वाला, कितना अकाउंट में केकर अकाउंट में का गए का जवाब हमके लिस्ट में देता है। और ममता बनर्जी के रूपाश्री, कन्याश्री, शिक्षाश्री केकर अकाउंट में कितना गए का लिस्ट हम लोग दे देंगे। बस एक सवाल करिए, बस उनका खत्म हो जाए। पर बीजेपी के एक ही काम बटे, खाली हम लोग के जो मोहब्बत बटे, वो मोहब्बत के बंटवारा करना, हम लोग के जो रिश्ता बटे हिंदू मुस्लिम के रिश्ता का बंटवारा करना, ये बीजेपी के दलाल लोग के काम बटे। लेकिन लोग से प्रार्थना करत नहीं और अनुरोध करत नहीं कि आप लोग ही छोड़ के जवाब दे के बाटे। और आने वाला दिन में विधानसभा इलेक्शन में हम लोग को ममता बनर्जी ममता बनर्जी के ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी विधानसभा में वोट देके विजय हासिल करे के बाद ये आप लोगों से हम प्रार्थना भी करब, अनुरोध भी करब, क्योंकि तू हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बहन सब, एक बेटी अपने बाप अपना भाई से ही मदद मांग सकती है। तो ममता बनर्जी के लिए आप लोग खड़ा हुए, क्योंकि ममता बनर्जी हम लोग का साथ है, हम लोग का साथ जुड़ी है। तो आइए हम सब मिलकर एक लक्ष्य ले कि इस बार विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही हम लोग जीत दिलाएंगे। पूरे बंगाल में हमारी ममता बनर्जी का ही जीत हो। आज के इस प्रोग्राम के तमाम कुल्टी अपर होरा के तमाम मेंबर के तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक